Hello students, myself Rakesh Misra. Now I am going to talk about innate immunity part 3rd, that is matter of class 12 chapter 8 human health and diseases. In previous two part, that is in part 1 and part 2, I have discussed about physical and physiological barrier in part 1 and some part of cellular barrier in part 2. That is, innate immunity are those kinds of immunity that we gain from our parents during embryonic development, and it is by birth characteristics of our immune system. Overall, innate immunity are actually defined as the different kinds of barrier that protect us of our body from the harmful pathogens. It may be the physical barrier by means of the skin outside and mucous membrane inside. By means of physiological barriers like different kinds of chemical, enzymatic action, thermoregulation, etc. And by means of cellular and cytokine barrier. Cellular barriers are too longer than the physical and physiological, so it required two part in part 2 and part 3. In part 2 I have discussed about the cellular barrier of different component of WBC and the natural killer, that is the part of lymphocytes, the specialized lymphocytes that actually release the very special kinds of chemical known as the perforin, and perforin make the whole over pathogens so that the overall pathogenic body get burst. That was the last topic of previous video lecture, that is part 2. In this video lecture, the remain part of physiological barrier, remain part of cellular barrier will discuss, that is the mast cell complements cytokine barrier. Now, without delay timing, let back on board to start the mast cell complements and cytokine barrier. Actually, the mast cell and complements are the cellular barrier, are the part of cellular barrier, while cytokine are the different other kinds of barrier that will not count as the cellular barrier. So let me back on board. According to the description, according to the video lecture, I will describe you the initial mast cell complements and later the cytokine barrier. Mast cells or mesocytes, listen carefully, it is very important part of cellular barrier, the third part of cellular barrier, mast cells or mesocytes. इससे पहले क्या बताया गया था, कंपोनेंट्स ऑफ WBC एंड नेचुरल किलर. ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. मास्ट सेल एक्चुअल में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं. स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स. ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स किसका पार्ट होता है, WBC का. तो ओवरऑल मास्ट सेल क्या होता है, वो WBC का ही पार्ट होता है, लेकिन ये स्पेशल नेचर का होता है, इसलिए हम कंपोनेंट्स ऑफ WBC में इसको काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, और एक्चुअल में आपको 11th में बताया गया था कि जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है, उसका जो मॉर्फोलॉजी होता है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे. ये ग्रेनुलोसाइट्स है, और ए ग्रेनुलोसाइट्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं. उसके न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा मॉर्फोलॉजी नहीं मिलती है और ग्रेनुलोसाइट्स में मॉर्फोलॉजी मिलती है. तो ये तो उसका की डिफिनेशन हो गया. इट इज स्पेशलाइज्ड granulocytes or WBC that participate in allergic response in our body, that participate in allergic response in our body, allergic response इन आवर बॉडी. ठीक है, ये कैसे प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी हमारे बॉडी में, एलर्जिक रिस्पॉन्स. कैसे, जैसे आपको कोई डस्ट पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर चला गया, तो जो स्नीजिंग आती है वो क्यों आती है, डस्ट पार्टिकल्स को बाहर करने के लिए. सपोज दैट डस्ट पार्टिकल्स कोई फॉरेन एजेंट्स है या कोई हार्मफुल केमिकल्स है, तो उसका बाहर जाना मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, मतलब एक तरह की इम्यूनिटी. ठीक है, ये कैसे प्रोवाइड करते हैं एक्चुअल में, इसके फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए. हाउ डू द मास्ट सेल्स प्रोवाइड अस इम्यूनिटी बाय मींस ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स. लिसन केयरफुली. The mast cells secrete very special type of chemical known as histamine and prostaglandins. Histamines and prostaglandins. ठीक है, histamines and prostaglandins actually perform the allergic response in our body during the allergens enter in our body. Allergens क्या होते हैं, ये किसके लिए एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं, एलर्जीन्स के लिए. ठीक है, एलर्जीन्स क्या होते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा, जिससे हमको सर्दी होती है, छींक आती है, वो सबको एलर्जीन्स बोलते हैं. सो अगेंस्ट द एलर्जीन्स द प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड हिस्टामाइंस प्रोवाइड अस इम्यूनिटी बाय एलिमिनेटिंग देम, काजिंग कफिंग एंड स्नीजिंग. स्पेशली हिस्टामाइन एक्ट एज
एलर्जी मीडिएटेड रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी, ये क्वेश्चन पूछता है। इट एक्ट एज एलर्जी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एलर्जी मीडिएटेड इम्यूनिटी बाय मीन्स ऑफ टू वे। एक तो कफिंग स्नीजिंग किसके साथ मिलकर के, प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ मिलकर के वो कफिंग स्नीजिंग करता है जिससे डस्ट पार्टिकल्स बाहर आते हैं। इसीलिए अगर लगातार सर्दी खांसी हो रही है इसका मतलब ज्यादा एलर्जी, ज्यादा जो है हिस्टामाइंस हमारी बॉडी से सीक्रेट हो गया। तो एलर्जी की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए कौन सी दवा डॉक्टर देते हैं, एंटी एलर्जीन्स, जिसको बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन। ये आपको जानना है, एंटी हिस्टामाइन लेने से हमारी बॉडी में जो एलर्जी की प्रॉब्लम वो कम हो जाती है। तो पहला रिस्पॉन्स स्नीजिंग कॉफिंग से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है कि यही हिस्टामाइन एक स्पेशल तरह के केमिकल हिपैरिन से मिल करके हमारी बॉडी में एक दूसरे तरह से रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। इसको भी आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ मिलकर के कफिंग स्नीजिंग यानी एलर्जीन्स को बाहर करता है। दूसरा ये हिपैरिन के साथ मिलकर के कैसे रिस्पॉन्स देता है उसको मैं समझा रहा हूं। देखो, अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर बाइटन बाय द एनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स और देयर हैज सम स्क्रैचेज ऑन योर बॉडी, आपके बॉडी पे कुछ स्क्रैचेस पड़ रहे हैं या फिर क्या होता है ये कोई इंसेक्ट बाइट कर लिया, जैसे वेस्प या मॉस्किटो बाइट कर लिया, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है वहां पे फूल जाता है, ये स्वेलिंग आ जाती है और रेडनेस और स्वेलिंग, ये कॉमन सी बात होती है। और ये जरूरी नहीं है कि मच्छर या मक्खी के काटने, मक्खी तो काटता नहीं, मच्छर के काटने से हो। अगर आप जो है कभी कभी कुछ ऐसी दवा ले लेते हैं जिससे आपकी बॉडी में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर आपको एक नॉर्मल सा सिम्टम्स बहुत सारी बीमारियों में दिखे तो एक तरह का रिस्पॉन्स होता है। जैसे फीवर आपको बहुत सारी बीमारियों में कॉमन होता है, वैसे ही आप छोटे छोटे दाने शरीर पे, पिंपल्स, ये सब रिस्पॉन्स है। लेकिन मॉस्किटो बाइट्स या फिर कोई बाहर का कोई एलिमेंट्स आपको चोट लग गया जिससे आपको जो है शरीर में स्वेलिंग आती है, तो ये एक रिस्पॉन्स है। क्यों होता है भाई, जैसे मान लो कि अगर आपका ये नॉर्मल सा स्किन है, यहाँ पे इंसेक्ट बाइट किया तो अपना टॉक्सिक केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज कर दिया, थोड़े समय के बाद आपका क्या होता है, वो वाला पार्ट जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स है वो स्वेलिंग कर जाता है, फूल जाता है, थोड़ा सा ऊपर से देखने पे क्या हो जाता है वो एक पिंपल्स टाइप का निकल के आता है। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर वेस्प यानी हाड़ा हाड़ी मार दिया तो वहां पे भी स्वेलिंग बहुत बड़ा हो जाता है। रीजन क्या है, उनसे टॉक्सिक केमिकल्स ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, जितना जिसमें टॉक्सिसिटी होती है स्वेलिंग उतना ही हमारे बॉडी में कॉमन होता है। तो ये होता क्या है, करते क्या है एक्चुअल में, व्हेन एनीवन बाइटेन, दैट इज एनी इंसेक्ट और एनी हार्मफुल टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड आउट फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज फ्रॉम द स्किन, देन the heparin along with histamine increase the blood vessels area। suppose that यहाँ पे blood vessels है तो ये आर्टरी, वेन, कैपिलरी कुछ भी हो सकता है, तो उस एरिया में जहाँ पे ये टॉक्सिन्स अवेलेबल है उसका क्या करता है, एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, जब एरिया को बढ़ा देगा तो ज्यादा ब्लड यहाँ पे आएगा। और दूसरा काम क्या करता है, ये हिस्टामाइन इस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, इंक्रीज द ब्लड वेसल्स एरिया। और उसके बाद क्या होता है, हिपैरिन उतना दूर का ब्लड बिल्कुल थिन कर देता है, पतला कर देता है। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, इसको कहते हैं ब्लड डाइलेशन, ब्लड डाइलेशन। ठीक है, तो इस एरिया को बढ़ाने का काम कौन किया, हिस्टामाइन, और इस ब्लड को डाइल्यूट यानी पतला करने का काम कौन किया, हिपैरिन। ठीक है, और इससे जब ब्लड डाइलेट हो जाएगा तो ब्लड की कैपिलरिटी बढ़ जाएगी, यानी कि ब्लड की जो परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, दैट इज इट इंक्रीज द परमिएबिलिटी, it increase the permeability. Not only it responsible for blood dilation, it also increase the blood permeability, that is the blood can accumulate in this area very rapidly। यहाँ का ब्लड गाढ़ा है, यहाँ का ब्लड गाढ़ा है, लेकिन इस एरिया का ब्लड काफी पतला, इसलिए इसी में खूब एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं ब्लड जब एक्यूमुलेट होगा तो ब्लड में बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स है जो इससे पहले बताया गया था, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, वो सब मिल करके उस टॉक्सिन को खाना शुरू कर देते हैं। आरबीसी वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि उस एरिया में जितने भी टिश्यूज डैमेज होने वाले हैं उनको एक वेंटिलेशन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे वो लाइव होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि डेथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रेडनेस का चीफ जो कारण है, जो कभी चोट लगती है रेडनेस आ जाता है, तो इसका मेन कारण क्या है कि आरबीसी वहां पे एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है। रीजन क्या है कि ब्लड की कैपिलरिटी, ब्लड की परमेबिलिटी वहां पे बढ़ जाती है। आई होप योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द
function of mast cell is over. Function, that is mast cell perform two ways in our body, that is also known as allergic response. The inflammations in our body is also a part of allergic response. So which part of our immunity, which part of cells, which part of cellular barrier responsible for inflammatory response? The mast cells. How? Mast cells secrete very special types of chemicals known as histamines along with heparin. It causes inflammatory response and redness, that is actually tolerate the effect of toxicity as well as the pathogenic एक्टिविटीज। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख डालिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट डे इसको लाइव क्लास में समझा देंगे। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेलुलर बैरियर, दैट इज स्पेशल काइंड्स ऑफ 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ a group of 20 types of protein. You should write it, a group of 20 types of protein that causes phagocytic action and destroy of the pathogenic activities in our body. ये बिल्कुल phagocytic action और उसको eliminate करते हैं, destroy करते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, बस इसमें यही सारी चीजें लिख देना। ठीक है, छोटा सा टर्म्स है। अब आते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। Now the last part of innate immunity is cytokine barrier. Listen, ये फोर्थ पार्ट है। पहला क्या था? फिजिकल बैरियर, दूसरा क्या था? फिजियोलॉजिकल, तीसरा क्या था? सेलुलर बैरियर, और चौथा क्या है? साइटोकाइन बैरियर। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ बैरियर। ठीक है, इसको पहले डिफाइन करते हैं। मैं बोल रहा हूं, धीरे धीरे इसको आप लिख डालिए। ग्रुप ऑफ सबस्टेंसेस ऑफ एन लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, ऑफ एन लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, group of substances of a low molecular weight of protein that produces from very specialized immune cells of the body and help to provide the immunity by direct action over the pathogens. ठीक है, लिसन केयरफुली। ये होता क्या है कि ये एक स्पेशल इम्यून सेल से प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स होते हैं जो एक्चुअल में बाई नेचर प्रोटीन होते हैं। उनका मॉलिक्यूलर वेट काफी लो होता है। ठीक है, और ये एक स्पेशल इम्यून सेल से ही सीक्रेट होते हैं, यानी कि कंडीशनल होते हैं। वो कंडीशन बॉडी में ना बने तो ये सीक्रेट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि इसको सीक्रेट करने वाले कैरियर्स जो होते हैं वो बाय बर्थ ही होता है हमारी बॉडी में, इसलिए ये हमारे बॉडी में जो है इनेट इम्यूनिटी में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स पे आते हैं, इसके टाइप्स पे डिस्कस करते हैं। ये दो तरह के होते हैं। इंटरफेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछता है। इंटरफेरॉन, ठीक है, और बी इंटरल्यूकिन। तो सबसे पहले मैं इंटरफेरॉन की बात कर दूं। लिसन, इंटरफेरॉन क्या होते हैं? स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस होते हैं, जो स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट का, जो तब निकलते हैं जब हमारी बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन होता है। सपोज दैट ये हमारी बॉडी में क्या है? एक सेल है और ये उसका पड़ोसी सेल है, इस पे वायरस का अटैक हुआ, वायरस का, तो ये अपने तो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, दैट इज गॉट इन्फेक्टेड। अगर ये इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो इनके बाद से इनसे एक वेरी स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल निकलना शुरू हो जाएगा, दैट इज नोन एज द इंटरफेरॉन। ध्यान से सुनो, सिर्फ वायरस के अटैक में ही ये निकलते हैं। बैक्टीरिया वगैरह दूसरा कोई पैथोजन अटैक करेगा तो ये नॉर्मल सा जो सेल्स दिख रहा है ये इंटरफेरॉन सीक्रेट नहीं करेगा। और ये इंटरफेरॉन एक तरह का केमिकल्स होता है जो बगल के किसी हेल्दी सेल को, ये कौन सा सेल है? हेल्दी सेल। ठीक है, ये किसी हेल्दी सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी ये अब ये वायरस इसको तो इन्फेक्ट कर दिया लेकिन अब ये इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द केमिकल इंटरफेरॉन्स। ये आपको जानना है। एंड इट रिमेन नॉन इन्फेक्टियस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। So how can you define the interferon? The very special types of chemical that secreted from the virus infected cells and protect to other healthier cells. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए कॉपी में, अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन। और ये हमारे बॉडी में कैंसर्स के वायरस जो होते हैं, ऑन्को वायरस, उसके अटैक से हमारे बॉडी में नॉर्मल हेल्दी सेल को बचाता है। ठीक है, तो ये अल्फा इंटरफेरॉन्स, आप इससे पहले जब कैंसर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि ये इम्यूनोथेरेपी में बाहर से भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, किसी पर्सन से निकाल करके दूसरे किसी इन्फेक्टेड पर्सन में जिसको कैंसर होने वाला था उसमें ये ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफर किया जाता है।
इंटरल्यूकिन भी इंटरफेरॉन की तरह से होता है, लेकिन ये WBC के कंपोनेंट्स यानी कि ल्यूकोसाइट से, ठीक है, ये ल्यूकोसाइट से सीक्रेट होते हैं। ये बाकी किसी सेल से सीक्रेट हो सकते हैं, लेकिन ये इंटरफेरॉन ल्यूकोसाइट से सीक्रेट होते हैं और काम वैसे ही करते हैं। वायरस का अटैक ल्यूकोसाइट्स पे हुआ तो ये लगेंगे इंटरल्यूकिन सीक्रेट करने, और बाकी के WBC को यानी कि ल्यूकोसाइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आई होप आपको इनेट इम्यूनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। अगली वीडियो लेक्चर और अगली लाइव क्लासेस में मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको समरी बना लीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर या लाइव क्लासेस में इसको समझा देंगे। थैंक यू।